Namaskar. Good evening, viewers. I welcome you all to this first in a series of webinars being hosted by NCPCR. This first episode is in collaboration with Madhukar Rainbow Hospitals and is also being in association with New India Junction, the youth channel. I'm your host, Shivani Mohan. Today's topic is the impact of COVID-19 on children. So हमारे साथ काफी दर्शक जुड़ रहे हैं. आप सबको मेरा स्वागत है. Children's lives have been turned upside down by this pandemic. Between remote schooling, restricted time for outdoor activities, and no time with friends, children's routines have been turned topsy-turvy. We as a society have to give maximum comfort, protection, and safety to children in these times to ensure a bright future for them. National Commission for Protection of Child Rights is starting these series of webinars related to health and well-being of children. So I'm very happy that today two very eminent pediatricians are joining us to dispel some notions and doubts that people have about COVID. So I will be giving a brief introduction of both our guests. But before that, I would like to welcome Shri Priyank Kanungo, Honorable Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights, to speak a few words and motivate our panel. I think it's on mute. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर अंजलि सक्सेना जी का और डॉक्टर ए.के. सिंह साहब का. आज उन्होंने अपना कीमती वक्त इस क्रूशियल टाइम में कमीशन के रिक्वेस्ट पे निकाला और आज हम लोग बात कर सकेंगे, उनसे सुन सकेंगे कि इस कोविड महामारी के दौरान हमको बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, कैसे सुरक्षित करके रखना है. ये वेबिनार ना केवल बच्चों के लिए, बच्चों के अभिभावकों के लिए, बल्कि दूर दूर तक बैठे हुए काम कर रहे हुए बच्चों के साथ चिकित्सकों के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, सभी के लिए उपयोगी होने वाला है. और ख़ास तौर पर जो बच्चों के बीच में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, जो NGOs हैं, जो चिल्ड्रन होम के स्टाफ हैं, उन सभी को भी इस वेबिनार से बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स मिलेंगी, ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो हम सभी के काम आने वाली हैं. साथियों, बच्चे ही हैं जो इस देश को आगे लेके जाएंगे, इस देश को अगली पीढ़ी में लेके जाएंगे, इस देश को अगली जनरेशन में लेके जाएंगे. इसलिए बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. और ख़ास तौर पर जब हम पूरी दुनिया के साथ एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, ऐसे में देश के भविष्य की चिंता करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. और आयोग का ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव मदद, हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश करें. इसलिए हमने ये सीरीज़ ऑफ वेबिनार शुरू की है और आज ये पहला जो वेबिनार है, इसमें हमको रेनबो हॉस्पिटल की मदद मिली. मधुकर रेनबो हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन से हम ये वेबिनार आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. हमारे साथ न्यू इंडिया जंक्शन जुड़ा हुआ है, जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया कैंपेन में इन वेबिनार की सीरीज़ के लिए. हमारा ये वेबिनार्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. हम कोशिश करेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस आएँ, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बेसिस पे, उन इनपुट्स के बेसिस पे हम इन वेबिनार की सीरीज़ में ज़्यादा विषयों को, ज़्यादा टॉपिक्स को शामिल कर पाएँ. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए. आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा. धन्यवाद. Thank you, Mr. Kanungo. Those were indeed words of wisdom and encouragement. Now, I would like to introduce my guests formally. Our first guest today is Professor Dr. Arun Kumar Singh, Head of Department of Neonatology, AIIMS Jodhpur, and National Advisor, Rashtriya Bal Swasthya Karyakram, Ministry of Health and Family Welfare. In a career spanning almost 40 years, there have been many firsts in his career, right from the development of the first Department of Neonatology in the country at RPGMER and SSKM Hospital, Kolkata. And also, he developed the concept of sick newborn care unit for the first time globally and demonstrated it at Purulia district, a model that was followed all over the world.
Our second guest is Dr. Anjali Saxena, MBBS MD Pediatrics. Dr. Anjali Saxena is a pediatric intensivist and pediatrician with an experience of 31 years in these fields. She practices at Madhukar Rainbow Children's Hospital in Malviya Nagar, Delhi. She completed MBBS from Armed Forces Medical College, AFMC, Pune in 1990 and MD Pediatrics from Army College of Medical Sciences, New Delhi in 2000. So I welcome our eminent guests today. हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। बच्चे हमारे देश की धरोहर और इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। So in this regard, first question I would like to ask Dr. Anjali Saxena, because there's a lot of speculation going around. People are scared if there's going to be a second wave, third wave. I mean, are children more susceptible to this? So first of all, I would like to ask you, which age group of children are mostly affected by COVID? So ma'am, as pediatricians, we look after children right from the time they're born, newborns, through childhood and adolescence up to 18 years of age. So technically that is the age group that we've been seeing. And COVID has affected all age groups. We are from our experience seeing that the older children are probably having a little more serious symptoms, but otherwise even newborns can be affected. So, it's difficult to say which age group is particularly more affected. The entire age group could be affected in some way or the other. Okay. Is COVID different in children? कुछ इनके लक्षण अलग होते हैं जब बच्चों को होता है या जैसे बड़ों को होता है उसी टाइप के लक्षण देखे जाते हैं? जी मैम, कोविड एक अच्छी बात जो हमें अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि बच्चों में शायद कोविड माइल्डर डिजीज होती है। 2/3 ऑफ चिल्ड्रन, 2/3 बच्चों में तो एसिम्प्टोमेटिक, इट्स सपोज टू हैव नो सिम्टम्स, सो दे मे हैव नो सिम्टम्स ऑफ कोविड। जो बाकी के 1/3 बच्चे हैं उनमें ज्यादातर माइल्ड इलनेस होती है और बहुत कम बच्चे हैं जो सीरियस कोविड इलनेस से बीमार होते हैं या जिनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो उस तरह से ये एक अच्छी खबर है, बिकॉज वी थिंक के बच्चे एडल्ट्स के मुकाबले कम सीरियसली इफेक्ट होते हैं। Okay. Now, my next question is to Dr. Arun Kumar Singh. Since you head the Department of Neonatology, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये वो मेडिकल साइंस है जो शुरू में जन्म के बाद 1 महीने तक, because the children are very, very fragile and delicate at that stage, and this medical science looks after that. So, Dr. Singh, can newborn also get COVID? You'll have to unmute yourself. So first of all, I would like to thank you, Dr. Shivani, the chairperson. क्या नवजात शिशु का, I'll use both English and Hindi for our viewers, क्या नवजात शिशु को कोविड हो सकता है? जरूर हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर एक और तरीके से देखा जा सकता है कि न्यूबॉर्न को, और इस पर चूंकि मैंने रिसर्च किया है जी, हमने मदर और न्यूबॉर्न्स को पेयर से ऑलमोस्ट 1 साल से हम फॉलो अप कर रहे हैं, जो भी मदर्स कोविड पॉजिटिव होती हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोविड वायरस से सफर करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या हम बीमार पड़ेंगे, क्या हमारे कोई लक्षण होंगे। तो देखा गया है कि ज़्यादातर न्यूबॉर्न्स में कोई लक्षण नहीं होते हैं, जबकि उनमें वायरस मिलता है, ब्रेस्ट मिल्क में भी मिलता है। यहाँ तक कि ज्यादातर प्रेग्नेंट मदर्स जो हैं वो बिल्कुल उनको बुखार तक नहीं आता, लेकिन जब हमने टेस्टिंग की तो वायरस पाया। जी तो इससे तो थोड़ा मतलब और खतरनाक है क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा। सो व्हाट काइंड ऑफ रेड फ्लैग साइंस
are there जिससे हम कुछ लक्षण, क्योंकि हम टेस्ट करवाने तभी जाएंगे ना जब हमें कुछ उसका अंदेशा होगा। देखिए, अगर हम लोग कोविड को नहीं समझेंगे तो हम ऐसे ही सोचेंगे। एक ख्याल कीजिएगा, कोविड तो चमगादड़ को होता है, जी क्या चमगादड़ मर जाते हैं? आज तक तो मुझे कोई चमगादड़ नहीं मिला। इनफैक्ट अगर आप लोगों को, व्यूअर्स को बताने के लिए कि चमगादड़ भी मैमल है, हम सब मैमल्स हैं जी और फ्लाइंग मैमल्स कहते हैं, और चमगादड़ में बहुत किस्म के वायरसेस मिलते हैं, लेकिन कोई भी चमगादड़ मरता नहीं। हम सब किसी न किसी वायरस इन्फेक्शन से आक्रांत होते थे, हम कभी नहीं डरते थे। वायरस से, इन्फेक्शन से आक्रांत होने से कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपके साइटोकाइन्स निकलते हैं, वो आपके शरीर पर निर्भर करते हैं। ओके अगर साइटोकाइन्स निकलते हैं तब मैं आईसीयू में जाता हूँ। वायरस केवल एक कैटलिस्ट है। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, अगर आज उसको कोविड पॉजिटिव हो जाए तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। 100 में से 80 लोग तो एडल्ट में भी उनको कोई सिम्टम नहीं होता, चमगादड़ को भी कोई सिम्टम नहीं होता। इसलिए नहीं सिम्टम होता क्योंकि उनका शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो इस वायरस के खिलाफ रिएक्ट नहीं करता है, जो एक किस्म की इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं, इम्यून इन्फ्लेमेशन। ओके तो वो इम्यून इन्फ्लेमेशन के लक्षण है बुखार आना, खांसी आना। अगर किसी को बुखार, खांसी, शरीर में दर्द नहीं है तो अच्छी बात है, चाहे वो न्यूबॉर्न हो, चाहे बड़े हो, चाहे मदर हो, आपको उनको फॉलोअप की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वायरस को नहीं ट्रीट करते हैं। सारा इलाज होता है साइटोकाइन को कम करने का, और अगर आपके शरीर में साइटोकाइन नहीं तो सबसे अच्छी बात आप लोगों के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि मैंने करीब 1.5 साल में हर बच्चे के साइटोकाइन किए, मदर के किए, वायरस आइडेंटिफाई किया, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया। ओके जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि मदर could you के explain न्यूबॉर्न, that, even cytokine, if you could explain that for our जी viewers? हाँ जी। तो ये दो चीजें हमें समझने की जरूरत है। ये जो वायरस होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं, यानी जड़ और जीवित जो हम लोग सुनते थे, जब ये बाहर रहते हैं तो जड़ होते हैं, और ये हजारों साल रह सकते हैं, हमसे पुराने हैं, हमारे पूर्वज हैं वायरस। Yes. जब ये किसी सेल में घुसते हैं, लिविंग सेल में, तो ये जीवित हो जाते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो अगर आप लोगों के शरीर में या मेरे शरीर में मैंने वायरस ले लिया जी और मैं आज वाला वेरिएंट की बात कर रहा हूं जो हमने आइडेंटिफाई किया, तो ये वायरस को, जैसे इंसान का बच्चा इंसान होता है, उसकी एक जेनेटिक मटेरियल होती है, वैसे कोविड वायरस जो कि देखने में मुकुट जैसा होता है, उसके भी एक जेनेटिक मटेरियल होती है। ये जेनेटिक मटेरियल में ही चेंज आता है। तो ये वायरस मेरे शरीर में घुस गया, मेरे सेल के अंदर चला गया, मुझे पता भी नहीं चलेगा। पता तब चलता है जब मेरा शरीर इसके खिलाफ लड़ाई छेड़ता है। आपके घर डकैत आए थे, डकैती करके चले गए, आपने उनको चैलेंज नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। So the symptoms are actually the defense mechanism. Cytokine markers, and we go to the ICU. Our lungs get damaged. हम जो ICU पहुंच जाते हैं, हम जो डेथ होती है, वो ऐसा एक भी पेशेंट दुनिया में नहीं मिलेगा जिसको साइटोकाइन नहीं बढ़ा हो। और मैं एक और आपसे बात कहना चाहता हूं, मैं कोविड होके ठीक हो गया, अब मेरे अंदर शरीर में वायरस नहीं है, तो भी अगर मेरे साइटोकाइन ज्यादा हैं, जिसको हम हाइपर इम्यून कहते हैं, ऑटो इम्यून भी होता है, तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे हार्ट को, मेरे लंग्स में। अच्छी बात ये होती है कि न्यूबॉर्न में सारी दुनिया डरती थी, और हिंदुस्तान को एक बात का श्रेय लेना चाहिए। ये श्रेय बॉम्बे के पीडियाट्रिशियंस को जाना चाहिए, एम्स के कुछ पीडियाट्रिशियंस को, कि सबने ये सोचा कि बच्चे में तो लड़ने की ताकत ही नहीं होगी। जैसा कि अभी आपने कहा कि भाई छोटा सा बच्चा है, प्रीटर्म है, 1 किलो का भी नहीं है, तो वो क्या ताकत से लड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि भाई ताकत होगी तो वायरस का मुकाबला कर लेंगे। एक्चुअली ताकत ज्यादा होती है तो परेशानी होती है। सो बोथ इन प्रेगनेंसी एंड इन न्यूबॉर्न वो चैलेंज नहीं करते हैं वायरस को, उनकी जो इम्यूनिटी है वो नहीं चैलेंज करती है, तो कोई सिम्टम नहीं होता।
मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास रिकॉर्ड है करीब 100 से ज्यादा मदर्स बच्चे का, जिनको हम अभी तक फॉलो अप कर रहे हैं। माँ को कोविड हुआ, कई बार तो ऐसा हुआ कि फादर की डेथ हो गई, मदर ने बर्थ दिया ट्विंस को, कोई दवा नहीं देने की जरूरत पड़ी, आज भी हम ट्विंस को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। Sure. So we'll get back to that point. Now, my next question is to Dr. Anjali. According to you, what are the red flag signs in slightly older kids, say different age groups, 4 to 5, or 6 to 7, or adolescents also? Yes. So before we talk about the red flag signs, जो ऐसा है कि कोविड इलनेस में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की तरह ग्रेडिंग हो सकती है। ज्यादातर माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, थोड़ा गले में दर्द, जुकाम। कुछ बच्चों में हमने देखा है कि लूज मोशंस, वॉमिटिंग, पेट में दर्द हो सकता है, किसी किसी को कुछ रैश आ सकता है या आईज में रेडनेस हो सकती है। एंड कभी कभी बड़े बच्चे ये भी बताते हैं कि हमें स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रही, बॉडी में दर्द है, सिर में दर्द है। सो दीज आर माइल्ड सिम्टम्स। लेकिन ये जो माइल्ड डिजीज होती है, इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि इसमें सांस की तेज होना या सांस में दिक्कत होना ये नहीं होता है, और हमें इसी चीज के ऊपर ध्यान देना होता है। क्योंकि जब ये डिजीज माइल्ड से अगर किसी बच्चे में मॉडरेट या सिवियर की तरफ जाना शुरू करता है, तो हम देखते हैं कि बुखार कंटिन्यू रहता है। तो कोई भी बुखार जो 3 दिन 4 दिन से ज्यादा है या बहुत तेज बुखार है, उस पे हमें ध्यान देखना है। सो दैट इज वन रेड फ्लैग साइन। दूसरा है सांस की तेज चलना। अब सांस की तेज चलने के लिए यूजुअली देखते हैं कि जो 5 साल से बड़े बच्चे होते हैं, उनकी सांस की रफ्तार अगर हम 1 मिनट के लिए काउंट करें, जैसे सांस अंदर लेना छोड़ने को 1 साइकिल अगर हम काउंट करें, और अगर हम 1 मिनट के लिए काउंट करें, तो 5 साल के बच्चे की सांस की गति 30 से कम होनी चाहिए। अगर 30 से ऊपर है तो उसको सांस में दिक्कत हो रही है। इसी तरह से अलग अलग एज से छोटे बच्चों की सांस की गति थोड़ी और होती है, जैसे 2 महीने तक 50-60 तक भी नॉर्मल ली जाती है। तो एक तो वो देखना है। दूसरा, ज्यादातर घरों में हमने देखा है पल्स ऑक्सीमीटर होता है। पल्स ऑक्सीमीटर अगर हमें पता है तो वो कभी कभी बच्चों में भी यूजफुल आ जाता है। जो बड़े बच्चे हैं वो भी हम ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर वो अच्छे से फिट हो रहा है और उसमें रीडिंग आ रही है, तो 95 एंड अबव होना चाहिए वो सैचुरेशन, SpO2 जो पल्स ऑक्स में रीडिंग है। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अगर कम आ रही है तो पैनिक ना करें, क्योंकि बच्चों में कभी कभी पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग सही नहीं आती है। तो ये दो तीन चीजें हैं। प्लस इन एडिशन, जब बच्चे सीरियस होते हैं तो हम देखते हैं कभी कभी वो बहुत सुस्त हो जाते हैं, लेथार्जिक होते हैं। किसी बच्चे को बहुत सिवियर डायरिया, वॉमिटिंग होती है, वो ओरली नहीं ले पाते, डिहाइड्रेट होते हैं। और बहुत रेयरली शॉक जैसी कंडीशन भी होती है, जिसमें हाथ पैर ठंडे होना, पेल होना। सांस की दिक्कत का एक और चीज जो हम देख सकते हैं कि अगर सांस की दिक्कत बढ़ती है तो हम देखते हैं कि बच्चा खींच के सांस ले रहा है, जिसे कहते हैं पसली चलना, और वो पूरी तरह से बात भी नहीं कर पाते, पूरे सेंटेंस बोलना। सो ये सब कुछ लक्षण है जिसको हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। तो कोई भी बुखार जो 3 दिन से ज्यादा चले, या और भी कोई सीवियर सिम्टम्स हो, या सांस की गति तेज चले, तो दीज आर द रेड फ्लैग साइंस दैट वी शुड वॉच आउट फॉर, so that we can monitor the child. Okay. So do children with COVID need to be hospitalized? मतलब कब हम सोचे कि ये हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है? तो इसी के कंटिन्यूटी में कहते हैं कि जो माइल्ड केसेस होते हैं उनको बिल्कुल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, उनको आराम से घर पे मैनेज किया जा सकता है। बट हमें अलर्ट रहना चाहिए सो दैट वी कैन पिक अप द रेड फ्लैग साइंस, एंड जब जरूरत पड़े तब हम समय पे, जो सबसे जरूरी चीज है कि बिल्कुल समय पे, सही समय पे हम कैच करें कि ये सिवियरिटी की तरफ जा रही है। तो अगर हम समय पे कैच करें और नजर रखें तो ये आराम से बच्चों को घर पे मैनेज किया जा सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत बहुत कम बच्चों में होती है। तो आप कह रहे हैं कि घर पे उपचार हो सकता है, तो आप बताइए कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर मैनेजिंग कोविड एट होम? अगर टेस्ट में पॉजिटिव आ गया है, उसके बाद घर पे क्या कर सकते हैं, क्या करने की जरूरत है? तो जी मैम, अगर एसिम्प्टोमेटिक है
शिवानी, तो कुछ देने की मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। बुखार अगर है तो पैरासिटामोल देना होता है, विच इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। साथ में हमें ये ध्यान देना है कि जैसे अगर उल्टी हो रही है बच्चे को, तो उल्टी की दवाई दी जा सकती है। अगर लूज मोशंस हो रहे हैं तो ओआरएस दिया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चा डिहाइड्रेशन में नहीं जाए, तो वो एडिक्वेट फ्लूइड्स पिए। बच्चे ज्यादा नहीं खा पाते हैं तो कोशिश करनी है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, ताकि उनका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। एंड अगर कोई बच्चा अगर ठीक से नहीं खाते हैं, पिकी ईटर्स हैं, हम कंसर्न हैं कि वो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो हम कभी कभी मल्टीविटामिन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ज्यादातर यही इलाज घर पे चाहिए होता है माइल्ड इलनेस में। But let me clarify that this has to be with some kind of medical supervision. We should be in touch with the doctor at least on the phone or yes. visits. So this is a good idea, Shivani, because जैसे ही घर में कोई भी पॉजिटिव आ जाता है तो उस टाइम में भी आप एंटिसिपेटरी गाइडेंस आप ले सकते हैं डॉक्टर से कि हमारे घर में पॉजिटिव आए हैं एडल्ट, बच्चा है, क्या ध्यान रखना है। आप तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे को बुखार के लक्षण हुए या कोई भी और सिम्टम आपको लगे किसी भी तरह का, आप रीच आउट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से। और आजकल बिकॉज ऑफ वीडियो कंसल्टेशन एंड वर्चुअल कंसल्टेशन, वी हैव बीन एबल टू गाइड मेनी फैमिलीज, तो अगर वो नहीं आ सकते हैं हॉस्पिटल, लॉकडाउन था, डर है, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बात करनी है, समझना है डॉक्टर से कि किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्या मॉनिटर करना है, तो ये सारी गाइडेंस वर्चुअल कंसल्ट एंड वीडियो कंसल्ट पे हो सकती है। तो इसमें जैसे कई फैमिलीज में अब पूरी फैमिलीज को भी हो रहा है, तो सपोज मदर फादर को है और बच्चे को अभी तक नहीं है, should the child be sent away to maybe grandparents, or it's okay if the child remains in the same house? What would you suggest? So this has been a very common query that we face, because इस वेव में क्या हुआ है कि अचानक से the virus has spread and whole families have come down together with COVID. एंड इसमें ना अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। अब जैसे अगर पेरेंट और बच्चा दोनों पॉजिटिव है तो वो एक जगह रह सकते हैं, प्रोवाइडेड पेरेंट इज वेल इनफ टू लुक आफ्टर। अगर पेरेंट बीमार है या हॉस्पिटलाइजेशन है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन वो साथ रह सकते हैं। पेरेंट, बच्चे को पेरेंट से सेपरेट करना, उसके आप और भी अदर रैमिफिकेशंस होते हैं ना, उसकी और भी दिक्कतें होती हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी देखा है कि पेरेंट पहले पॉजिटिव हुए और बच्चा नेगेटिव है और सोचते हैं चलो बच्चे को भेज देते हैं, कहाँ भेजें, ग्रैंड पेरेंट्स के घर या किसी रिश्तेदार के घर। तो इसमें दो बातें हमें याद रखनी है। एक तो हम वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं बिफोर सिम्टम्स डेवलप। 1 or 2 days before we develop symptoms, we can actually pass the infection on. एंड बच्चों में वैसे भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, तो अगर आप बच्चे को किसी और घर में भेज देंगे, वी डोंट नो, ग्रैंड पेरेंट्स भी एक हाई रिस्क ग्रुप है उनकी एज की वजह से, अनलेस दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम। Grandparents are vaccinated now. Till now, most grandparents have got both the doses. लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी शिवानी, वी हैव बीन एडवाइज्ड टू टेक प्रिकॉशंस बिकॉज वी डोंट हैव 100% एफिकेसी ना। तो वो मैं कह रही हूँ कि अगर पेरेंट्स आर वेल इनफ टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, देयर इज नो नीड टू सेपरेट। अगर पेरेंट पॉजिटिव है तो वो मास्क यूज करें, हैंड सैनिटाइजेशन यूज करें, एंड थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लें। I guess the diet and the correct routine which can be followed with the parents rather than somewhere else. And emotionally भी तो बच्चों को separate करके, and it is just such a traumatic thing for the child as well. So we should not get, we should not panic कि फटाफट बच्चे को भेज दें। आप सेम घर में भी आप जितने precautions ले सकते हैं, जितनी दूरी बना सकते हैं, मास्क यूज करें, अप्रोप्रिएट सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन यूज करें, तो बच्चों का केयर साथ में रख सकते हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज बहुत कॉमन है इस वेव में। ठीक है। Now coming back to Dr. Singh, एक टर्म सुनने में आ रहे हैं MISC. Would you like to explain what exactly is MISC? मैंने पहले ही कहा कि वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके बाद
या तो तुरंत ही पहले 6 दिन के बाद से कुछ हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम अगर ओवर एक्टिव हुआ तो वो एक केमिकल जनरेट करता है जिससे हमें बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ ये होती है, उसी को हम साइटोकाइन्स कहते हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि ये इन्फेक्शन आपका ख़त्म हो गया, आपको लगा कोविड अब निगेटिव हो गया, बच्चा ठीक है, 2-3 महीने के बाद फिर से बच्चे को बुखार आया, खांसी आई, आँख लाल हो गई, उल्टी हो सकती है, कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व कर सकता है जी। और तब अगर टेस्ट किया जाए तो फिर से देखा जाता है कि साइटोकाइन्स बढ़ गए। इस टर्म से डरने की जरूरत नहीं है, खाली एक ही चीज पेरेंट्स को याद रखने की जरूरत है कि भाई कोविड में अगर किसी बच्चे को हुआ और कोविड से ठीक भी हो गया तो भी उसे थोड़ा मॉनिटर करने की जरूरत है और अगर उसे वापस बुखार आता है, खांसी आती है, आँख लाल होती है, उल्टियाँ आती हैं या शरीर में कोई रैश होते हैं तो उन्हें वापस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि देखिए इसे कोविड हुआ था। ये केसेस इंडिया में जो भी मिले हैं उनका बहुत ही सिंपल इलाज होता है और उससे घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि किसी भी बच्चे का सही इलाज करने के बाद उसका ठीक नहीं होगा। तो ये एक ऑटोइम्यून फेनोमेनन है जो हमारी डिफेंस सिस्टम रखती है, हमें कोई डर नहीं पैदा करना चाहिए। जी, तो ये स्टेरॉइड्स कई बार दिए जाते हैं बड़ों को। आर स्टेरॉइड्स गिवन टू चिल्ड्रन आल्सो एंड शुड दे बी गिवन? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर अंजलि हंस रही है क्योंकि शायद हर पीडियाट्रिशियन, और ये एक अजीब सी बात है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या घर में को स्टेरॉइड दिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि मेरे जन्म के पहले से नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी की बीमारी है, बहुत कॉमन है और बच्चों को महीनों स्टेरॉइड दिया जाता है और अच्छे खासे डोज में दिया जाता है। लेकिन हमें पता ही नहीं था तब कि ये स्टेरॉइड है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, एक दहशत अचानक पैदा कर देते हैं। हम कभी भी स्टेरॉइड जो है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं बच्चों में, जब हम अस्पताल में रख के नहीं देते हैं, उनको घर में देते हैं, पेरेंट्स भी ठीक थे, उनके अंदर दहशत नहीं पैदा थी। पहली बात है कि स्टेरॉइड हमारे शरीर से भी निकलता है, तो स्टेरॉइड कोई ऐसी चीज नहीं है कि खाली बाहर से। ये एक इलाज है, ये एक इलाज है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा जो आपने पहले पूछा था कि आज की तारीख में जो भी प्रेग्नेंट मदर्स सुन रही हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। कोविड के टाइम में मैंने देखा है कि मदर्स को एक टेंशन होता है, कई बार तो वो ये कहती हैं कि जी प्रेगनेंसी रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, बहुत स्ट्रेस होता है। मोस्ट ऑफ द मदर्स हु कम एक डर से, एक दहशत से, मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया, मेरे बच्चे को क्या हुआ, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, क्या उसका नुकसान हो गया, क्या वो सही सलामत होगा, क्या वो रिटार्डेड हो जाएगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके, तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप स्ट्रेस करेंगे तो स्ट्रेस का नुकसान बच्चे को पहुंचता है। और वास्तव में देखा गया है कि जितने भी रिसर्च हुए हैं, फीटस इज सेफ, यानी आपके गर्भ में जो बच्चा है वो बिल्कुल सेफ है, उसको चिंता नहीं करें। आप खुश रहेंगे तो बच्चा भी ठीक से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस करेंगे और फिर आके आपने कह दिया कि भाई जल्दी से बच्चे को निकाल दो, ये पहली बात ये है। दूसरा ये है कि बच्चा पैदा हुआ, चाहे माँ कोविड पॉजिटिव हो या माँ कोविड निगेटिव हो, पहले अगर पॉजिटिव है 1 महीने में, तो बच्चे को हम माँ से दूर नहीं रखते। जो बात डॉक्टर अंजलि जी कह रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चे को माँ से अलग करने का डैमेज कोविड से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे की पूरी दुनिया उसके माँ के साथ रहती है। तो न्यूबॉर्न में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, बॉम्बे में बहुत सारे लोगों ने किया, और मैं तारीफ करूंगा कि सीडीसी अमेरिका में कहा गया कि बच्चे को तुरंत अलग कर दो। इंडिया में नहीं अलग किया गया, अब भारत सरकार ने भी इसको मान लिया है। बच्चे भी सेफ रहते हैं, माँ का ही दूध पिएंगे और माँ के साथ रहेंगे। ये स्ट्रेस जो है हर मदर्स को समझना चाहिए, कोविड होने से न उनके बच्चे को कोई खतरा है, और जैसे वो बच्चों को लाड़ प्यार करके अपना दूध पिला के बड़ा करती थी वैसे ही करना। ठीक है, I can understand because pregnancy itself is, such a big milestone in any woman's life, and going through it in such times adds stress. But as you advise, women should try and stay cool and
probably listen less to the news and WhatsApp forwards. Now, but recently a COVID negative mother gave birth to a COVID positive child. Now, this can also happen. If you could educate on this matter. Yeah. So first of all, let me tell you, this particular variant, which initially started what we call the UK variant, यानी वायरस के जो है जैसे इंसान के भी कुछ एक इंसान जो कश्मीर का है वो अलग देखने में लगता है, एक इंसान है, लेकिन हम सब इंसान हैं। वैसे कोविड की फैमिली में भी थोड़ा वेरिएशंस होता है। इस वेरिएशन में ये देखा गया कि कोविड जो है बहुत ज्यादा घातक नहीं हो गया, प्राण घातक नहीं हो गया, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का स्प्रेड ज्यादा होने लगा। यानी जो पिछला वेव जिसको हम कहते हैं उससे ज्यादा स्प्रेड किया। अगर पिछले में एक आदमी से 4 आदमी को होता था तो इस बार 6 आदमी को हो गया। ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हुआ। अब हम जो आरटीपीसीआर करते हैं उसके भी एक वो फुल प्रूफ नहीं है। क्या है आरटीपीसीआर? आरटीपीसीआर एक पद्धति है जिससे कि हम स्वैब लेके ये पता करते हैं कि भाई अगर वायरस है तो उसका एक जेनेटिक मटेरियल होगा और हम उसको मशीन के द्वारा एम्पलीफाई करते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक छोटी सी चीज है, ये अभी दिख नहीं रही है, बहुत छोटी है, मैंने इसको बढ़ा के काफी बड़ा किया, 35 बार बढ़ाया तो ये दिखने लगा। तो मैंने कहा भाई अभी भी आप पॉजिटिव। 35 बार बड़ा करने के बाद नहीं देखा तो हमने कह दिया नेगेटिव है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं 50 बार करता तो भी पॉजिटिव नहीं, 100 बार करता तो भी आ सकता है। तो आरटीपीसीआर का मतलब केवल इतना होता है कि हम अपने मशीन से किसी चीज को जो दिख नहीं रही है उसको हमने 35 बार उसको बड़ा किया, इनलार्ज किया, और अभी भी नहीं दिख रही है तो मैंने मान लिया और नहीं करेंगे। तो जिनको आप आरटीपीसीआर नेगेटिव कह रही हैं वो मदर एक्चुअली पॉजिटिव थी, लेकिन हमारे टेस्ट में नहीं आ सकती है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर किसी माँ को कोविड के टाइम बुखार हो, किसी माँ को जो है वो खांसी हो, ब्लड के बाकी टेस्ट भी किए जा सकते हैं जिसमें साइटोकाइंस भी आते हैं, सीआरपी है, अगर ये बढ़े हुए हैं तो आप मान के चलिए कि वो कोविड पॉजिटिव है। कई बार हम एक्सरे करा के बता देते हैं अगर आरटीपीसीआर। अब रह गई बात कि माँ से बच्चे को, बिल्कुल बच्चे को 2 तरीके से मिल सकते हैं। या तो जैसा कि आपने कहा माँ नेगेटिव है, तो एक पहला सिनेरियो कि सचमुच माँ नेगेटिव नहीं थी, माँ पॉजिटिव थी लेकिन मेरे टेस्ट ने उसको नहीं पकड़ा। दूसरा है कि मैं तर्क के लिए मान भी लूं कि माँ सचमुच नेगेटिव थी और जिस अस्पताल में बच्चा हुआ उसको डॉक्टर सिंह देखने के लिए गए और डॉक्टर सिंह के द्वारा मिल गया। हो ही सकता है एनवायरमेंट में भी, लेकिन उस केस में भी बच्चे को कोई फर्क नहीं है। माने ये हमने करके देखा, हमें खुद आश्चर्य होता है, बच्चा कोविड पॉजिटिव है, आराम से दूध पी रहा है, आराम से बड़ा हो रहा है, क्योंकि उसके शरीर के साइटोकाइंस नहीं था। तो बस आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि इस केस सिनेरियो हो सकती है। सेकेंड वाली केस सिनेरियो अनकॉमन है क्योंकि आजकल सब लोग बहुत सतर्क रहते हैं, अस्पताल में भी पीपी सूट पहन के जाते हैं, मास्क। लेकिन अगर मान लीजिए कि मिल भी गया तो कोई फर्क नहीं। So I have got a few questions from the audience. दर्शकगण जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप सवाल कमेंट्स में लिख सकते हैं। Coming back to Dr. Anjali, in adults, you know, we hear about comorbidities, and those are the people who are more likely to get more severe symptoms. Are some children at a greater risk of serious illness with COVID similarly? So we have seen an association with obesity. So we've seen adolescents who have obesity, they have a little more serious illness, and that has been our experience so far. Also, children who have chronic illness. So suppose they have a chronic heart disease or a chronic liver disease or a chronic renal disease, or children with developmental delay or some genetic abnormalities. These children would obviously, need a little more care during the COVID illness. Okay. So, but obesity we have found an association in adolescents. Okay, so can something be done about the diet? Because, obviously if a child is obese, immediately you can't ask them to shed weight.
what kind of diet should we give to kids to prevent So, our kids? when this is talking about total health, so nutrition. So when we talk about nutrition, we need a well balanced diet, which should have all components. Especially fruits and vegetables, which is what we usually find that children are fussy about, They don't and buy fruits. there's a lot of tendency for junk food. So Yes. हमें उससे हटाना है। प्लस क्या हुआ है कि एक साल में हम देख रहे हैं कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, क्लासेस ऑनलाइन हो गए हैं, डाइट उनका घर में मदर पेरेंट्स वी एज इंडियंस look after our children, we feed और them well. लास्ट ईयर के लॉकडाउन में सबने घर पे छोले भटूरे और पानी पूरी ये सब बनाना सीख लिया है, बनाना सीख भी लिया है। तो कई बार देखा बंद हो गया ना बच्चों का। तो कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रिशन पे खास तौर पे ध्यान देना है, एंड जंक फूड के बारे में भी जानकारी बढ़ानी है, फूड लेबल्स पढ़ना सीखना है। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी बहुत इस पे रिसेंटली काम किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए अबाउट जंक फूड। सो न्यूट्रिशन के लिए आई थिंक जो सबसे जरूरी है बच्चों के लिए ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंक्लूड होना, थोड़ा सैलेड इंक्लूड होना, नॉट टू हैव fried meals, have home cooked food, Sure. I'm going to show this. I'm going to show this live to my daughter first, after it gets over, because it's a daily tussle with kids what to eat and what not to. And what other ways in which we can protect our kids from COVID? Of course, by now everybody is wearing masks and sanitizing and washing hands frequently. Any other tips you can give? Yes, Shivani, there are a few points that I want to make. तो जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हमें एज एडल्ट्स रोल मॉडल्स बनना है बच्चों के लिए। हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स मास्क तो पहने हैं, बात करते वक्त नीचे हो रहा है, मास्क के आउटर सरफेस को टच कर रहे हैं, कौन से मास्क पहन रहे हैं। सो हाथ, हैंड सैनिटाइजेशन, बीच बीच में हाथ धोना, मास्क छूने से पहले बाद में हाथ धोना, अब बाहर हैं तो फेस पे हाथ अपना टच ना करें, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करें। तो सबसे पहले तो हमें एज पेरेंट्स ये रोल मॉडलिंग करनी है, क्योंकि बच्चे वो ही करेंगे जो हमें देखेंगे। दूसरा, बच्चों के लिए भी 2 साल तक तो मास्क अलाउड नहीं है, क्योंकि उनका सेफ्टी हैजर्ड हो सकता है, रिस्की हो सकता है। 2 से 5 साल तक हम मास्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सुपरविजन में, क्योंकि उनको कोई सांस की दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा उससे बड़े बच्चों को हमें ना मास्क की थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड सिखाना ये कर सकते हैं। हाथ धोना सिखाना, 40 सेकंड के लिए साबुन पानी से हाथ धोना है, थिंग्स लाइक दैट। नाउ बात ये है कि अभी जैसे लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगे and suddenly you will find that marketplaces and malls and all सब खुल जाएंगे, तो क्या होगा, we will tend to go out and then we don't know, nobody knows कि आगे कब हमें फिर से दोबारा से we are going to face a COVID surge. तो ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वी हैव टू कंटिन्यू दिस। एंड एक और चीज है कि बच्चों को, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे, तो बच्चों को इन्फेक्शन ज्यादातर एडल्ट से हो रहा है। बच्चा इज अनलाइकली टू बी द फर्स्ट केस। जैसे कोई क्लस्टर होता है केस का, जैसे एक फैमिली में, जॉइंट फैमिली में, it is not usually the child who's bringing it. He is not the first person. So we often do this. We ask children to be at home, but we are stepping out and bringing back infection. So if you, more unfair. So adults को protect करना है, and if they do get symptoms, how to keep a distance, take the precautions. So all that COVID appropriate behavior has to continue even after lockdown restrictions open up. Okay, so this is for the long haul. So I'd like to ask Dr. Singh, that are children more affected in the second wave, and more importantly, is there going to be a third wave? Because this is something which gives us sleepless nights these days. So you see, हम लोग जो ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव सोचते हैं, मैं 2-3 चीजें बता दूं। जिनको पहली बार हो गया था उनको दूसरी बार नहीं हुआ। मीडिया में काफी इस बात पे चर्चा रहती है कि री इन्फेक्शन,
तो मैंने जो अपना काम किया है कि वायरस जो है कई बार आपके शरीर में रहता है, मैंने जैसे कहा आरटीपीसीआर निगेटिव भी हो सकता है और फिर जो है आपने कह दिया निगेटिव हो गया, लेकिन 2-3 महीने के बाद लेटेंट में फिर से हो सकता है। रीइंफेक्शन का मतलब है कि दो अलग चीजों से। तो पहली बात यह है कि जिनको कोविड पहली बार हुआ उनको दूसरी बार नहीं हुआ, जिनको दूसरी बार हुआ उनको पहली बार नहीं हुआ था और आगे नहीं होना है। अभी तक तो यही पता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि SARS-CoV-1 जो है सबसे पहले चाइना में 2002 में हुआ था, तो उसको भी फॉलो अप करके मैंने देखा, उस जो भी आर्टिकल्स निकले। ये जो सेकेंड वेव की डर जो थी वो ज्यादा इसलिए थी कि एक साथ ज्यादा लोग बीमार पड़ गए जी। तो वो एक साथ जब बीमार पड़ गए तो एक दहशत मच गई और एक डर जो है वो पहले से ही खड़ा था। तो पहली बात है मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप लोग ये जो वेबिनार कर रहे हैं, अगर इंसान का डर कम हो जाता तो दिल्ली या कहीं भी जो भयानक अवस्था हुई है वो नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 100 में से 80 लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनको है। उनके घर में किसी को हुआ, उन्होंने टेस्ट करा लिया, अरे मेरा भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, तो मुझे अस्पताल जाना है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो, ऑक्सीजन लेके रखना है, दवाइयां तक खत्म हो गई थी, स्टेरॉइड जो है वो मिल नहीं रहे थे। तो ये जो पैनिक बटन था उसमें क्या हुआ कि सचमुच जिसको दवा की जरूरत थी, जैसे कि मैडम ने कहा कि भाई जो सीवियर है और ज्यादातर सीवियर दूसरे सप्ताह में होते हैं, उनको अस्पताल में जगह नहीं मिली, माइल्ड और मॉडरेट। तो तीसरी बार ऐसा ना हो उसके 3 चीजें। अगर आप दहशत फैलाएंगे तो जैसे स्टैम्पेड होता है, कोविड से ज्यादा आपके दहशत से ज्यादा लोग मरेंगे। It's like a chain reaction, you know. Like a chain reaction. Yes. और फिर और देखिए पहले सप्ताह में सारे ही बच्चों को माइल्ड रहेगा। माँ बाप को ये होता है कि यार सीवियर होगा तो मुझे बेड मिलेगा कि नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, तो पहले से ही ऑक्सीजन रख दो, पहले से ही बच्चे को भर्ती कर दो। अब हिंदुस्तान की तादाद जो है 1.3 बिलियन की, आपको इतने ना बेड मिलेंगे ये। तो मेरा ये ख्याल है कि हर एडमिनिस्ट्रेटर को एक लोकल वे में अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे घर में ट्रीट हो सकते हैं। Okay. मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि 2 चीजों के बारे में हिंदुस्तान बात करता है और इससे केवल कोविड के लिए फायदा नहीं है। आज जो बातें हम कर रहे हैं उससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज में हमें फायदा हो सकता है। छोटे में बता रहा हूं, अभी तक आप जो बात कर रही हैं वो ये है कि वायरस को कैसे रोका जाए। आपने लॉकडाउन किया, मास्क लगाया, घर से बाहर ना निकलने की इजाजत दी, जो भी आपने सोचा उसमें ये सोच थी कि वायरस जो है एक से दूसरे व्यक्ति को न जाए। 1-2 चीजें मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया में 1-2 चीज जरूर करें। अपने घर की खिड़कियां खुली रखें। अब WHO ने भी कहा हवा को आने दे, खिड़कियां मत बंद करें। और पड़ोस में क्या करते हैं लोग, जिनके घर में कोविड हो जाता है उनको कहते हैं अपनी खिड़कियां बंद करके रखो। दैट इज नहीं ये आया, लिफ्ट में नहीं उठने देते हैं। डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करके अपने घर जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आप घर मत आइए, आप कोविड। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात है ये वायरस को रोकने के लिए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि 100 में से 80 लोगों को कोई सिम्टम इसलिए नहीं होता कि उनके शरीर में वायरस नहीं गया या वो बहुत ताकतवर थे, वायरस गया, लेकिन वो सिम्टम इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके बॉडी सिस्टम में जो एक इम्यून इन्फ्लेमेशन का मतलब है एक आग, जैसे कोई चीज जल जाए तो एक सुली, वो आग के कारण होती है। किसी में वो आग बढ़ जाती है तो आप आईसीयू में चले जाते। तो ये जो इम्यून इन्फ्लेमेशन है, पहली बात है कि बच्चों में चाहे 3rd वेव आए 4th वेव आए, मैं ये मानता हूं कि जितना छोटा बच्चा होगा उसमें ये इम्यून इन्फ्लेमेशन नहीं होता, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, वो ऐसे बचे। दूसरी बात है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मुझे कोविड हो लेकिन मैं अस्पताल में नहीं भर्ती हूं? उसके लिए अभी जो मैडम कह रही थी, हर पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि वो अपने बच्चे को ओबेसिटी ना होने, ओबेसिटी से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। अब हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, कोविड के कारण जो मौत होती है उसमें बात कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चों का लिवर ठीक है, किडनी ठीक है, ओबेसिटी नहीं है, और कुछ बच्चों को डायबिटीज होती है, तो ये जो चीजें हैं कंट्रोल कीजिए और एक्सरसाइज कराइए। हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट साइटोकाइन्स।
हम Yeah, खाली there are many exercise one can do at home also, like yoga and you do, aerobics, yeah, dancing. but I would go one step forward and say कि small children should not be caged in their houses. आप मोहल्ले में बात कर लें कि एक साथ क्राउड नहीं हो, 4 बच्चे बाहर निकले, डिस्टेंस मेंटेन करके बाहर खेलें, बट गोइंग आउट ऑल्सो गेट्स यू सेरोटोनिन, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साइटोकाइन को कम करता है. Absolutely. That benefit And should coming also. to that precise point, I wanted to ask, there's a question from one of our guests, Bhavya Gandhi. Mental health of children is affected in various ways today. Do you think post-COVID children can become more reserved and fearful of the disease? तो बच्चों में भी एक डर पैदा हो गया है, क्योंकि वो टीवी पे देखते हैं और अपने आसपास जो भी देखते हैं, और उनकी लाइफ कितनी अफेक्ट हुई है पिछले 1.5 साल में. हम तो फिर भी समझ सकते हैं, बच्चे ये सब कैसे समझेंगे? सो व्हाट कैन बी डन, लाइक व्हाट आर द इफेक्ट्स, मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स? I think the mental health of the child is affected 2 ways. One is if he has already suffered from COVID, so कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जिनको मैं कह रहा था साइटोकाइंस, जो कि हमारे इमोशनल ब्रेन पे काम करते हैं. एडल्ट्स में भी डिप्रेशन देखा गया, इनमें भी डिप्रेशन देखा गया. कुछ का कारण है कि आप सूरज की रोशनी में बाहर नहीं जाते, आप खेलने नहीं जाते, टीवी को ऑन करेंगे तो एक दहशत है. तो जो बच्चे की एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के द्वारा उसको वो सारे खुराक मिल रहे थे उसके दिमाग को, जो कि उसको शांत कर रहे थे, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे थे. इसके बारे में तो सोसाइटी को सोचना पड़ेगा कि जितना डर आपको कोविड वायरस से है, उससे कहीं ज्यादा, कोविड तो चला जाएगा, लेकिन ये जो साइटोकाइंस बढ़ जाएंगे, ये जो डिप्रेशन होगा, इसकी छाप बहुत दिनों तक रहेगी. तो मैं ये कहूंगा कि माँ बाप को कि जरूर इतना डर ना पैदा कर दें कि बच्चा जो है वो भयभीत हो जाए और सब कुछ बंद हो जाए. Shivani, can I add here? Sure, Yeah, please. can I add something? So, Yes. In fact, this is what I've started seeing. मुझे बहुत ज़्यादा अब दिखने लग गया है mental health issues. बहुत सारी families हैं जो इफेक्ट हुई हैं. Anxiety and stress तो बहुत all time high है. जो पेरेंट्स में है वो बच्चे भी ऑब्जॉर्व करेंगे, प्लस सुनते हैं, प्लस sad incidents, grief is happening in families. So children वो भी देख रहे हैं, वो भी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं. एंड इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि जब पेरेंट्स को ऐसा फील हो कि वो ओवरवेल्म्ड हैं, उनको इमोशनल इश्यूज फील हो रहे हैं, सैडनेस हो, ग्रीफ हो, ब्रेकिंग सैड न्यूज हो, कभी कभी बच्चों के लिए भी उस तरह की हेल्प चाहिए होती है, तो इसमें प्लीज दे मस्ट रीच आउट. There are mental health professionals who will give you know, a hand through this crisis. Bache are going to absorb from parents. So parents also have to look after their mental health. And they must reach out to mental health professionals if they are overwhelmed or are going through an emotional crisis. Okay. So I have another question from one of our viewers, Yash Goel. Although you have already mentioned, Dr. Anjali, if you could recapitulate what are the symptoms to see in small children and infants? What are the symptoms to watch out for? हाँ, so जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं माइल्ड इलनेस में, वो होता है बुखार, थोड़ी खांसी, थोड़ा जुकाम, कभी कभी कुछ रैश, कुछ दाने, अलग अलग टाइप के दाने दिख सकते हैं, कभी आंखों में रेडनेस दिख सकती है, कभी लूज मोशंस, वॉमिटिंग, पेट दर्द बच्चे बता सकते हैं. तो यही कॉमन सिम्टम्स होते हैं, हेडेक, बॉडी एक, लेग पेन्स, जनरल सिम्टम्स. तो यही होते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी पेरेंट्स से कि नजर रखें, अगर बुखार 3-4 दिन से ज्यादा चल रहा है या बच्चे की सांस आपको लग रही है कि थोड़ी तेज चल रही है, अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग ले पाते हैं और आपको लग रहा है कि सही रीडिंग है और 95 के नीचे आती है, या बच्चे को बहुत डायरिया, वॉमिटिंग हो, डिहाइड्रेशन, बच्चा सुस्त हो, बहुत ज्यादा सो रहा है, एक्टिव नहीं है, ये साइंस हैं देखने के लिए इलनेस के लिए कि माइल्ड इलनेस के बियॉन्ड तो नहीं प्रॉब्लम हो रही है. बट ज्यादातर माइल्ड इलनेस जो है वो नॉर्मल फ्लू, वायरल इलनेस की तरह ही होता है. Sure.
Now, another question to Dr. Singh. What is the role of the COVID vaccine, and what is your opinion about vaccination of children whenever it comes to India, and when we'll be ready to vaccinate our children? How helpful would that be? See, I think there are two parts which people think. There is a group of people who say कि वैक्सीन ले लेंगे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 वैक्सीन हो गई मेरी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड देयर इज अनदर पार्ट विच सेज कि अगर वैक्सीन लेके भी हो रहा है तो वैक्सीन क्यों ले. आई थिंक साइंस इज इन बिटवीन. वैक्सीन आपकी एक पद्धति है कोविड से आपको संभालने की, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग. Of course, you will have to maintain your blood pressures. Of course, you will have to bring down your weight. Of course, you have to have a healthy lifestyle. अगर आपने अपना वजन बढ़ा लिया तो forget COVID. कोई भी वायरस इन्फेक्शन आके आपके साइटोकाइन्स को बढ़ा जाए. तो ये वैक्सीन ले लिया तो मेरी छुट्टी, अब मुझे कोई डर नहीं है. This is one group of people जिनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि no, it is one of the various aspects how to control this disease. This is only one way. Secondly, those who think that they should not take vaccines, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि this is the best solution this world has of now. Yes. आज के विज्ञान में this is the best solution. So they should not deny the best solution. What will happen tomorrow? That is a different thing. No one knows. Neither I know nor anyone. But this is the best possible solution जो पूरी दुनिया में सब लोगों ने एक्सेप्ट किया. वो भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. रह गई बच्चों की बात, तो बच्चों को इसीलिए बाद में दिया गया कि बड़ों में साइटोकाइन्स ज्यादा होता है, रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, पहले उनको दिया गया, फिर धीरे धीरे हम कम आ रहे हैं. नेचुरली न्यूबॉर्न को अगर कभी दिया भी जाएगा तो ये सोच के दिया जाएगा कि भाई इनमें तो साइटोकाइन्स ऐसे ही नहीं. And adding to that, what is the role of drugs such as ivermectin, HCQ, favipiravir? I don't even know how to pronounce all of them, but in children, are they used for children? So आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है. एक्चुअली बच्चों की बात क्या करें, बड़ों में भी तो दो किस्म के टीवी डिबेट होते हैं. कोई कहता है आइवरमेक्टिन देना चाहिए, कोई नहीं देना चाहिए. मुझे लगता है कि मैं इस पूरे कोविड को 2 बॉक्स में समझता हूँ. पहला बॉक्स है वायरस हमारे पास नहीं आए, आप मास्क लगाती हैं, ये करती हैं, या आए वायरस तो हम उसको जल्दी से मार दें, ये एंटीवायरस. ये एक है, ये पहले 3-4 दिन 5 दिन में होता है. उसके बाद होता है हमारे शरीर के सिम्टम्स. सबको नहीं होते सिम्टम्स, 20%. ये दूसरा बॉक्स. इस बॉक्स में हमारा इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा गुस्सा करता है, लाल हो जाता है, इन्फ्लेम्ड होता है, उसको ठंडा करना होता है, शांत करना होता है. उसके लिए अलग अलग दवा देते हैं. अब जब लोगों ने कहा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो किसी ने कहा अरे अभी तो वो कह रहे थे मेडिकल साइंस वाले, नहीं गलत नहीं कहा, तब भी सही था. आज क्या है कि हम नए नए मॉलिक्यूल्स ढूंढते हैं और देखते हैं फायदा किससे है और नुकसान कितना है. तो फायदा और नुकसान के बीच में जोड़ के हम बोलते हैं कि साहब आज के लिए ये दवा ज्यादा फायदेमंद है. लेकिन ये सारी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक के रूप में नहीं काम करती थी, ये इन्फ्लेमेशन कम करती थी. आइवरमेक्टिन ये इन्फ्लेमेशन कम करती. तो जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे जाएगा हम पता करेंगे कि इस उम्र के लिए, इसके लिए स्टेरॉइड एक पूरी सारे इन्फ्लेमेशन बंद करता है. ये सारी दवाएं साइटोकाइन्स पे काम करती हैं. आज हम खाली इतना जान लें कि मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर्स दिन रात काम करते हैं वो ये सोचते हैं इस दवा का फायदा कितना है, नुकसान कितना है. इसलिए इस बात को इतना डाइल्यूट में नहीं कर सकता हूं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए. वो डॉक्टर्स पे छोड़ दें. आपके शरीर को, आपके रोग को समझ के ये दवाएं दी जाएंगी. ये साइटोकाइन्स कम करने की दवाएं, उनको मॉड्यूलेट करने की दवाएं. और ये डिफिकल्ट साइंस होता है. वायरस को मारना आसान होता है, साइटो. और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हम पीडियाट्रिशियंस ट्रीट करते रहते हैं इससे पहले भी, जिसमें हमें साइटोकाइन्स को कम करना. Sure. One last question for Dr. Anjali. Although you have also partly answered this one, how can a child manage his mental well-being if someone close gets affected, severely affected by COVID-19? Sonika Mittal, our viewer, has asked. So, they should get professional help
also. Yeah, they can seek professional help. Of course, the parents are the best people, if the parents are not anxious, are with the child, and if they are able to talk to this child, reassure the child, if that works, well and good. But if the parent himself or herself is overcome, with is distraught with emotions, or is not, or is finding that the child is, not kind of responding to their love and tender care, then definitely yes, they should seek professional help. Sure. I think that's about it. You have Can I given add one some. thing? Can I Sure. add one? In fact, there is another question, but Okay, so why don't you ask that question? is limited. So I can ask quickly. Recently, the state of Rajasthan witnessed increase in number of COVID cases. How has the health department or ministry adapted the provisions of care in response to the pandemic? So, I mean, any place, the basic management criteria is that mild diseases should be managed at home. They should be given an assurance, whether it is a child, that if you require, because सारी बीमारियां माइल्ड भी होती है, पहले सप्ताह में माइल्ड ही होती है, 80% माइल्ड ही रह जाएगी, सीवियर नहीं होगी. तो अगर आपको सीवियर चाहिए होगा तो आपकी कोई मदद करेगा. दैट कोऑर्डिनेशन हैज टू गेट ऑन. सो दैट इज व्हाट द पीपल डू. दे डिवाइड द पॉपुलेशन को अलग अलग पॉकेट्स में, हर को एक इंचार्ज बना देते, कमेटी बन जाती है कि भाई आप अपने सिम्टम्स को मॉनिटर कीजिए अपने घर में, आप अपने ब्लड प्रेशर देखते रहिए, आप अपना टेम्परेचर देखते रहिए, आप अपना सैचुरेशंस देखते रहिए, और ये जो है आप आजकल तो व्हाट्सएप हो गया है, तो आप इसको भेजते जाइए या कोई आपसे इकट्ठा करेगा और आपको एडवाइस मिलती रहेगी. जब अस्पताल की जरूरत होगी तो जहां अस्पताल मिल सकता है, ये है आइडियल. लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि सबसे मैं आइडियल हो जाता है. एक मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीन की आपने बात की, मैंने वो फैमिलीज में देखा है कि दे कुड टैकल द थिंग्स. अगर कोई डेथ भी हुई है, द फैमिलीज विच केम क्लोज, और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव वैक्सीन. उसका साइंस भी है. एंड व्हाट इज पॉजिटिव वैक्सीन? आप जब बीमार हैं, कोई आपके पास आके खड़ा होता है, आपको कहता है आप अच्छी हो जाएंगी, तो आपके शरीर में जो केमिकल्स निकलते हैं वो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं, वो आपके डिप्रेशन को कम करते हैं, आपके लड़ने की ताकत. मैं एज ए डॉक्टर कहना चाहता हूं कि हम किसी मरीज को ठीक नहीं करते, हम मरीज की मदद करते हैं ठीक होने में. So unless and until that positive vaccine is given by the neighbors, by the family members, तो ये एक वक्त है जब आप अपनों के साथ खड़े हो सकते हैं आपके मोहल्ले में. ये पॉजिटिव वैक्सीन जरूर है. So staying in touch with friends, family, giving reassurance is equally important. Another question from Neeta Agarwal, but I think you have answered it regarding how closely newborn baby can be kept to the mother. You have already answered it. एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है सतीश शर्मा जी से. बाल गृहों में रहने वाले बच्चे ज्यादा संख्या में होते हैं, कोविड से उन्हें कैसे सुरक्षित रखें, मार्गदर्शन दें. देखिए, मैं ये हमेशा कहूँगा कि बच्चे चाहे जहाँ भी रहें, उनका बेसिक नेचर एक होता है, लेकिन बाल गृह का एक और प्रॉब्लम होता है. वहाँ क्राउडिंग ज़्यादा होती है, वहाँ बच्चों को पर्सनलाइज केयर देने के लिए उनके माँ बाप नहीं होते हैं, और इतनी संख्या में लोग नहीं होते हैं कि हर बच्चे को पर्सनलाइज केयर दे पाए. मुझे ये लगता है कि पहली बात है, पैनिक नहीं होना चाहिए जी. वहाँ पे अलग अलग उम्र के बच्चे होते हैं. 5 से कम में चांसेस बहुत कम होते हैं कि सिम्टम्स होगा और कुछ होगा. 5 से 10 में कुछ होगा. 10 के जो ऊपर वाले हैं, क्योंकि बच्चे का मतलब जन्म से लेकर 18 साल होता है, तो इन बच्चों को थोड़ा अलग अलग रखें और एक दूसरे बच्चे अपने सिम्टम्स बताते जाएं. ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन उनके रिलेशंस में डिस्टेंस ना मेंटेन करें. ठीक है, एंड जो भी उनके इंचार्ज में हैं उनको ये दें. मैं एक और चीज कहूंगा कि अगर हो सके
तो कोविड ने हमें ये भी सिखाया है कि पानी पूरी तो खाते हैं सब लोग, लेकिन कुछ ऐसे भी खाने हैं जिनको इस कुदरत ने दिया है जिससे कि कोविड होना या कोई भी बीमारी से आप बचते हैं। वो भी जो है वो पेड़ बच्चों को लगाएं भी, इन्वॉल्व देम कि वो बच्चे पेड़ लगाएं, उनके नाम पर ही वो पेड़ कर दें और उनको खिलाएं भी। ये पेड़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मोरिंगा जिसको सजने कहते हैं, सजने का मोरिंगा, वो इतना यूजफुल है, तो बच्चों को सिखाएं, नींबू का पेड़ लगाना सिखाएं, नींबू पे तो ये ना ऑलवेज कि हम विटामिन सी उनको सिखाएं, जिंक सिखाएं, ये भी तो हो सकता है बिल्कुल जो है वो। तो ये चीजें जो है वो बाल गृह में जरूर दें, उनको ऐसे काम करें कि वो मेंटली एब्जॉर्ब हो और कंस्ट्रक्टिव रोल हो, उससे उनका डिप्रेशन भी नहीं होगा, और ज्यादा देर तक टीवी और ये गैजेट न दे। That is very necessary. That's an incredible tip. I think the idea is to go back to nature, go back to our roots, and stand with friends, family, support them. That's the best tip. And on behalf of NCPCR, I would like to thank you, and I salute all the doctors who have been doing such wonderful work and saving the nation. So I would like to formally thank Dr. Anjali Saxena and Dr. A.K. Singh for this wonderful chat. I'm sure our viewers enjoyed it, and we'll continue this series with different topics. Thank you very much for joining us. Thank you, Shivani, and thank you for. बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का।